Yes. Good morning, students. Students, today we will discuss about surface area and total surface area of a cylinder. So, students, suppose we have this a rectangle. Area of rectangle, we know that this is L of rectangle, this is B of rectangle. So, we calculate its area L into B. So, area of rectangle is L into B. Now, suppose we convert this rectangle into a cylinder. This is a cylinder. So students, you see that length of the rectangle becomes the circumference of our cylinder, and breadth of rectangle becomes the height of cylinder. So लेंथ के स्थान पर हमने सर्कमफिरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर रखा, एंड ब्रेड्थ के स्थान पर हमने इसकी सिलेंडर की हाइट h रखी. सो 2 पाई आर, L इज 2 पाई आर एंड B इज h. सो 2 पाई आर h becomes the curved surface area of cylinder. Curved surface, this is curved surface. Now students, a cylinder has top as a circle, so area of top is pi r square and area of bottom is also pi r square. So if we want to calculate total surface area of cylinder, then we will add a curved surface area plus area of top plus area of bottom. So 2 pi r h is curved surface area plus pi r square top plus pi r square bottom. Pi r square plus pi r square 2 pi r square हो जाएगा, हम उनमें से कॉमन ले लेंगे. So total surface area of cylinder will becomes 2 pi r into h plus r. Now students, suppose this is a circle. So, and this is r. R is radius of this circle. We want to calculate area of this circle is pi r square. Suppose its area is radius is capital R. So area of this circle is pi into capital R square. Now we cut off a small circle from this. Suppose we cut off a small circle from this. This is a small circle, and suppose its area is its radius is small r. So area of this circle is pi small r square, and this becomes a ring. This becomes a ring. So students, if we want to calculate the area of a ring, then we calculate total surface area of bigger circle minus area of smaller circle. तो बिगर सर्कल एरिया इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉलर सर्कल एरिया इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर. सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. सो दिस बिकम्स एरिया ऑफ ए रिंग. दिस इज ए रिंग. यू कैन से दिस ये के लोहे के वाशर की तरह से होता है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज की आइडेंटिटीज हो गई. ओके. सो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, इसमें फॉर्मूले बनते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अभी हमने आपको जो है समझाया है 2 पाई आर एच, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, हमने इनमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर इसका अंदर रह गया. तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है. आपको ये ऊपर वाले दोनों याद नहीं करने, इसको याद करना है, इसी को याद रखना है. क्वेश्चंस में इसी को यूज करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज ए रिंग. सपोज दिस इज फिगर ऑफ ए रिंग एंड वी वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए रिंग. एरिया ऑफ रिंग, आउटर सर्कल का पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर सर्कल का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें से पाई कॉमन ले लिया. तो ये आपको समझाने के लिए है, आपको लर्न, ये जो बॉक्स में है ये लर्न करना है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, इन आवर क्वेश्चंस वी विल यूज दीज 3 identities. So learn these identities, and after that you will solve questions of exercise 13.2. So first of all, we take question number 1. The curved surface area of a right circular cylinder of height इतना and is इतना. ये तो height है और ये curved surface area है. Find the diameter of the base of the cylinder. Students,
किसी भी क्वेश्चन में अगर उसके डायमेंशंस में कुछ दे रखा है तो पहले हम डायमेंशंस में से लिखेंगे, बाद में उसका एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब बाद में लिखे जाएंगे। पहले अगर उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस वगैरह दे रखे हैं तो पहले वो लिखेंगे। सो इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है तो सबसे पहले हमने लिखा हाइट ऑफ सिलेंडर, उसके बाद में कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, हमने लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में इसके नीचे हमने इसकी आइडेंटिटी लिख दी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के नीचे 2 पाई आर एच, और ये वैल्यू आ गई। इसकी यूनिट चलती रहेगी जब तक हम इधर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तब तक ये यूनिट साथ रहेगी। सो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7। अगर पाई की वैल्यू कहीं गिवन हो तो जो गिवन है वही लेना है, नहीं गिवन है तो 22/7 लेना है। आर हमें नहीं पता, आर को आर ही रख लेंगे। एच 14 दे रखा है, हमने एच 14 रख दिया। इनको हमने सोल्व कर लिया, आर 1 सेंटीमीटर आ गया, बट हमें डायमीटर निकालना है तो रेडियस का डबल कर देंगे, वो डायमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन सेकंड, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इतने सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। कहता है मेटल सीट से एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, उसकी हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, बट स्टूडेंट्स एक ध्यान रखें दोनों के यूनिट सेम होनी चाहिए। सो हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, हमने इसका भी मीटर बना लिया। बिकॉज ये कहता है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। कहता है ये सिलेंडर बनाने में कितने स्क्वायर मीटर, तो मीटर में इसने पूछा है एरिया, तो एरिया स्क्वायर लगा दिया तो इसका मतलब एरिया पूछा है इसने। अब सीट कहां कहां लगेगी सिलेंडर में, कर्व सरफेस में भी लगेगी, टॉप और बॉटम में भी लगेगी, तो इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये एरिया आ गया। सो जितना एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया उतनी सीट ही रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट है एक मेटल पाइप है, ये पाइप की लेंथ दे रखी है, इनर डायमीटर दे दिया, इनर आउटर डायमीटर भी दे दिया। स्टूडेंट्स पाइप के अंदर ये पाइप का जो एंड है, एक सिरा है, वो एक हमारे रिंग की तरह से काम करेगा, रिंग का। तो सो इसमें फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया में इनर रेडियस यूज करेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया में आउटर रेडियस यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे इस पाइप का, देखिए नेक्स्ट पेज पर पाइप का फिगर दिखाया गया है। पहले तो हम लेंथ, पाइप की लेंथ है ये एच का काम करेगी, इनर रेडियस लिख दिया, आउटर रेडियस लिख दिया। अब इनर कर्व सरफेस एरिया में इनर रेडियस लेंगे 2 पाई आर एच और सोल्व कर लेंगे। आउटर कर्व सरफेस एरिया में आउटर रेडियस ले लेंगे तो कैपिटल आर ले लेंगे हम, तो कैपिटल आर ये आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया में ध्यान से देखें, आउटर कर्व सरफेस एरिया, टोटल इनर कर्व सरफेस एरिया, और जो दोनों सिरों को अगर हम देखेंगे टच करके, जिन सरफेस को हम टच करके देख सकते हैं वो सब इसके सरफेस कहलाएंगे। उन सभी सरफेसेस का एरिया निकाल के उनको ऐड करना है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, और ये टॉप है, टॉप के अंदर से तो खाली है, बट टॉप को हाथ लगाएंगे तो इस रिंग के हाथ लगेगा हमारा, तो इस रिंग का एरिया और इस रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हमारे पास 2 रिंग है इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया, तो एरिया ऑफ बोथ रिंग्स हम निकाल लिया, बोथ रिंग्स यहाँ पर। इसके बाद में देखिए आउटर इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और बोथ रिंग्स का एरिया, इन सब को ऐड कर देंगे, वो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप हो जाएगा। सो इसको ध्यान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिलेंड्रिकल पिलर इतने सेंटीमीटर इन डायमीटर, इतनी मीटर हाइट। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, उसका डायमीटर से रेडियस लिख लेंगे और हाइट गिवन है, ये मीटर में दे रखे हैं तो हम इसको मीटर में ही चेंज कर लेंगे रेडियस को भी। फिर कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस। इस पिलर के कर्व सरफेस को पेंट करना है तो इस पिलर का कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे 2 पाई आर एच, और उसके बाद में पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो ये रेट है पेंटिंग का। तो कॉस्ट कैसे आएगी, जो कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर आ जाएगा। सो ये आप खुद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से है।
पहले उसमें हाइट दे रखी थी, इसमें रेडियस दे रखा है, उसमें भी कर्व सरफेस एरिया था, इसमें भी कर्व सरफेस एरिया है। उसमें हाइट दे रखी थी तो रेडियस कैलकुलेट हो गया, इसमें रेडियस दे रखा है तो हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। सो आप इसको खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर डायामीटर। इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल। एक सर्कुलर वेल है, सर्कल जैसा वेल है, तो उसकी डेप्थ को देखेंगे तो वो सिलेंडर का काम करेगा। कहता है उसका डायमीटर दे रखा है, यहां से रेडियस लिख लेंगे, और ये उसकी डेप्थ है, ये एच का काम करेगी। डेप्थ और हाइट एक ही बात है। फिर कहता है फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस, इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे 2πr से। फिर कहता है इसके इनर कर्व सरफेस को प्लास्टर करना है, लिपाई करनी है इसकी, तो इसका रेट दे रखा है ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो जो इनर कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको इस रेट से ₹40 पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग आ जाएगा। तो इसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ इतना एंड डायमीटर इतने सेंटीमीटर। देखिए सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ दे रखी है 28 मीटर, आप 28 लिख लेंगे। डायमीटर से आप रेडियस लिखेंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, 5/2 आएगा इसका रेडियस, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/200 आ जाएगा। काटेंगे तो 1/40 मीटर, इसका रेडियस 1/40 आ जाएगा। लेंथ है 28 मीटर है। स्टूडेंट्स देखिए जब सिलेंड्रिकल पाइप है तो उसमें से जब हीट पास होगी तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया ही हीट रेडिएट करेगा। तो इसने कहा है टोटल रेडिएटिंग सरफेस, जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस सिलेंडर का केवल कर्व सरफेस ही होता है, जो दोनों सिरे हैं वो प्लेन होते हैं, उनमें से जितनी हीट इंटर करेगी उतनी बाहर निकल जाएगी, इसलिए वो हीट रेडिएट नहीं करेंगे। सो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वही इसका टोटल रेडिएटिंग सरफेस कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज इतना मीटर एंड डायमीटर इतना मीटर इन डायमीटर एंड इतना मीटर हाई। देखिए एक क्लोज्ड पेट्रोल टैंक है सिलेंडर की शेप में, इसका ये डायमीटर है, यहां से हम रेडियस लिख लेंगे, और ये हाइट है सिलेंडर की, ये हाइट लिख ली। अब ये कहता है कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। हमने आइडेंटिटीज के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। तो इस सिलेंड्रिकल जो टैंक है इसका लेटरल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, तो वो हो गया 2πRH, ये आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। पहला पार्ट बिल्कुल इजी है। सेकंड पार्ट में एक खास बात है, देखिए स्टूडेंट्स जब हम ये सिलेंड्रिकल टैंक बनाएंगे तो इसके बनाने में कुछ स्टील वेस्ट हो गई होगी, कटाई छटाई में कुछ स्टील वेस्ट हो गई। तो ये कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। स्टूडेंट्स सपोज करो आप अपने एक शर्ट सिलवाते हैं टेलर से, आपने 2 मीटर कपड़ा परचेज किया और टेलर को दे दिया कि मेरी शर्ट बना दो, और शर्ट बनने के बाद आप से कोई पूछे तो क्या वो सारा कपड़ा उसमें है? नहीं, कुछ कपड़ा उसकी कटाई वगैरह में वेस्ट हो जाता है। बट आपसे कोई पूछेगा कि इसमें कितना कपड़ा लगा, तो आप यही कहेंगे कि मेरी शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगा है। सो स्टूडेंट्स जो वेस्टेज हो जाती है उसको हम इसमें लेस करेंगे, तब एक्चुअल में ये आएगा। तो ये कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, यानी कि एक्चुअल में इसने कितनी स्टील परचेज करी होगी। जो स्टील प्रेजेंट है और जो स्टील परचेज की उनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि कुछ स्टील वेस्ट हो जाती है। सो ये कहता है इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, टैंक बनाने में 1/12 भाग स्टील का वेस्ट हो गया, तो एक्चुअल में हमने कितना स्टील परचेज किया वही स्टील यूज माना जाएगा। सो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे लेट एक्चुअली यूज्ड स्टील। एक्चुअली यूज्ड स्टील का मीनिंग यहां पर है कि भाई स्टील परचेज कितनी करी गई। तो एक्चुअली यूज्ड स्टील हमने x मीटर स्क्वायर मान लिया। ये कहता है वेस्ट हुई 1/12 ऑफ दिस स्टील, तो वेस्टेज हो गई 1/12 ऑफ दिस x, तो x/12 हो गई। अब इस स्टील में से वेस्टेज घटाएंगे तो वो स्टील यूज्ड इन सिलेंड्रिकल टैंक या स्टील प्रेजेंट इन सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक में स्टील प्रेजेंट कितनी होगी, इस x में से ये x/12 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा।
इसके बाद में ये तो हमारे हिसाब से आ गया, बट एक्चुअल में उसमें स्टील कितनी है, बट एरिया ऑफ स्टील प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना है, स्टील टैंक में जो स्टील प्रेजेंट है वो उसके कर्ड सरफेस, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, सभी सरफेस में प्रेजेंट है, तो उसका हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। सो ये हम निकालेंगे तो ये हमारा 87.12 आ जाएगा। देखिए ये तो स्टील एक्चुअल में उसमें प्रेजेंट है, हमने जो मानी उसके हिसाब से ये स्टील प्रेजेंट है। इन दोनों को हम बराबर रख देंगे और सोल्व कर लेंगे, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आएगी वो हमारा एक्चुअली यूज्ड स्टील हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहां भी आप ये लिख सकते हो स्टील प्रेजेंट, यूज्ड की जगह आप ये भी लिख सकते हो स्टील प्रेजेंट इन सिलेंड्रिकल टैंक। सो इसके बाद इन दोनों को हमने बराबर रखा, x की वैल्यू आ गई, तो ये हमारी एक्चुअली यूज्ड स्टील हो गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि ये एक पेन होल्डर है और पेन होल्डर, सॉरी, इसमें कहता है कि एक डेकोरेटिव एक पेन होल्डर है या लैंप शेड है, लैंप शेड का बाहर एक डेकोरेटिव लैंप शेड है, उसके बाहर डेकोरेशन के लिए उसका सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसके ऊपर कपड़ा लगाना है, और कपड़े में कहता है कि थोड़ा मार्जिन रखेंगे ऊपर मोड़ने के लिए और नीचे मोड़ने के लिए। तो उसकी जो हाइट है 30 सेंटीमीटर, उसमें 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखना है, तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से मोड़ेंगे, 2.5 सेंटीमीटर नीचे से मोड़ेंगे, तो इसलिए 2.5 2.5 और 30 सब ऐड होकर के 35 सेंटीमीटर हमारा सिलेंड्रिकल जो डेकोरेटिव क्लॉथ होगा उसकी हाइट 35 हो जाएगी, और रेडियस गिवन है, आप उसका कट सरफेस एरिया निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स यहां पर ये कहता है कि कोई स्कूल के बच्चे हैं, वो किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, उनको पेन होल्डर बनाने हैं कार्डबोर्ड से, तो प्रत्येक पेन होल्डर का रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखी है। आप ये देखेंगे कि पेन, आप स्टूडेंट देखिए, पेन होल्डर जब बनाते हैं तो उसका कर्व सरफेस एरिया बनाना पड़ता है, और उसका बॉटम तलहटी बेस लगाना पड़ता है, टॉप खुला रहता है, अदरवाइज अगर टॉप बंद कर देंगे तो पेन कैसे रखा जाएगा। सो टॉप उसका खुला रहता है। सो इसलिए पेन होल्डर में जो कार्डबोर्ड यूज होगा, एक पेन होल्डर में जो कार्डबोर्ड यूज होगा उसका एरिया निकालेंगे, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, फिर प्लस में पेन होल्डर का जो बेस एरिया है वो ले लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया में तो 2πrh हो गया, और पेन होल्डर का बेस है πr²। तो ये इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के हम इसका एलसीएम ले लेंगे, और ये इसमें एक कार्डबोर्ड, एक पेन होल्डर बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ वो आ जाएगा, एक पेन होल्डर बनाने में। इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। अब 35 पेन होल्डर बनाने हैं, तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 उससे इंटरसेक्ट हो जाएगा। सो इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया। ये कार्डबोर्ड यूज्ड इन 35 पेन होल्डर्स। सो देखिए, स्कूल को परचेज करना है ये कार्डबोर्ड, तो कहता है कि स्कूल कितना कार्डबोर्ड परचेज करे स्टूडेंट्स को देने के लिए, तो जितना कार्डबोर्ड यूज होगा उतना ही परचेज किया जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड और एरिया ऑफ कार्डबोर्ड परचेज्ड बाय द स्कूल इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से बेस्ट ढंग से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इसका एक बेस्ट रिवीजन भी लगाएंगे। ओके, थैंक्स।